Okay. Okay. So you have gone through. So move first. Move to the top once again. Our chapter is electricity. Okay, or you can say current electricity. Okay. Move down. Yes, sir. Moved on. So first topic was electric current and circuit. So you have got the idea about electric current and circuit. Yes, sir. Very good. Moved on. Move. Go up. Yes. Little more. Little more. Next page. So you got the idea about this first formula I is equal to Q by T. Yes. Yes, sir. Okay. Move. Move on. This figure is represent. This figure represents the schematic diagram. A schematic diagram of electric circuit comprising cell. This is your cell, electric bulb, ammeter, and plug key. Okay. Yes, sir. So you have gone through this example 12.1. Yes, sir. Very good. Move on. And you have gone through these three examples, these three questions. The three question. Yes. Yes, sir. Done. Okay. Very good. Go. Move up. And have you gone through this flow of charge inside a wire? No, sir. No issue. Today, when you get the time, you just study these. Okay. No more to know. यदि आप और भी सीखना है तो you can read this also when you get time. Okay. Move up. Okay. The next topic was electric potential and potential difference. Have you gone through this? Yes, sir. Very good. Any doubt in this? No, sir. Okay. Very good. Go up. So have you gone through this formula? सर इसमें Just हाँ. सर 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. हम्म. तो सर यहाँ तो नीचे में 1 volt is equal to 1 - 1 क्यों हुआ? क्योंकि कूलम नीचे में है, जूल पर कूलम, कूलम पे पावर -1 है क्योंकि वो नीचे में है. ठीक है. पावर -1 मतलब क्या है? नीचे हो गया ना. यस सर. हाँ, तो वो नीचे में है. सो जस्ट वेट 1 मिनट. और अभी तो यहाँ ये क्लियर हुआ. 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम. पर कूलम को लिखा गया है यहाँ पर कूलम पावर -1. यस. यस सर. वेरी गुड. Have you gone through this example 12.2? यस सर. Okay. Very good. And have you gone through these questions 1, 2, and 3? नो सर. नो सर. So you go through this question also. Okay. ओके सर. Next is circuit diagram. Come to this. Have you gone through this circuit diagram? यस सर. डन. Very good. Very good. Go ahead. So these are the symbol which we use यस in सर. circuit diagram. Have you gone through this? यस सर. Very good. Go ahead. Then comes Ohm's law. Okay, just wait there. Ohm's law. Uh, good morning. Good morning, Aditya. गुड Am I मॉर्निंग सर. audible to you? Yeah, good morning. Aditya, just wait 5 minutes. I am giving you quick revision. Just
What? Yes, Ravi. Have you gone through this Ohm's law? No, sir. Not yet. Okay, no issue. You go through those questions, and after that this Ohm's law, and you go through the activity also. Move up. Go ahead. Yeah, you go through this activity. This is very interesting activity. After that, the graph is there. Move up. This graph is there. You can understand this graph. Then I have already told you this d proportional to I is Ohm's law, mathematical form. Go up, go up. Then formula is there. Then activity, one more activity is there, 12.2. Okay, go up. You go through all of this. Then after this, the next topic is factor on which resistance of a conductor depends. I have already told you there are two factors. One is length, other is area of cross section. Yesterday I have told you. Yes, Ravi, go ahead. Yeah, here it is written. R is proportional to L and R is proportional to A. Combining both of them, R is proportional to L upon A. When we remove the sign of proportionality, R equal to rho L upon A. This rho is written where rho is constant of proportionality and called electrical resistivity. There are three things you should remember: resistor, resistance, and resistivity. Aditya, can you tell me what is the difference between these three words? सर रजिस्टर्स जो सर सीधे में रहे। रजिस्टर सीधे में रहने मतलब मैं समझा नहीं। क्या सर? फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? सर रजिस्टर मतलब सर जो सीधे में रहे, रेजिस्टेंस जो टेढ़ा मेढ़ा जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। गुड मॉर्निंग आराधना। सिलेबस के आसन लिखवा देंगे एक बार। आराधना, एम आई ऑडिबल टू यू? Aradhna, just mute yourself and let me and confirm me. Am I audible to you or not? Or you can type in chat box also. Yes, sir, you are audible. You can chat. You can tap Aradhna. If you are not able to say, you can chat. Yes, audible. At least tap this so that I can proceed. Okay. Okay. Yes. So Aditya and no, I'm asking Ravi. Ravi, can you tell me the difference between resistor, resistance, and resistivity? These three things. Sir, Yes. हाँ बोलिए रवि, हाँ बोलिए। no, sir. ओके, नो इश्यू। आप लोग पेपर और पेन लीजिए और नोट कीजिए। रजिस्टर जो हुआ वो वायर को बोलते हैं रजिस्टर। उसके अंदर जो करंट को फ्लो नहीं करने देने की टेंडेंसी है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टिविटी। रजिस्टर क्या हुआ, वो वायर आपका रजिस्टर है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस है, और उसके जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो है रेजिस्टिविटी। ये तीन चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आर क्या शो कर रहा है, आर शो कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर।
और इस फॉर्मूला में जो रो है वो शो कर रहा है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दैट रजिस्टर। क्लियर हुआ रवि? Yes, sir. Okay, then move up. Go ahead. Okay, see, this is the table which show resistivity of different material. लिखा हुआ है material. These are the material: silver, copper, aluminium, etc. And these are the resistivity of that metal. ये लिखा हुआ है, जो कि कंडक्टर का सबसे कम होता है resistivity, एलोन का थोड़ा अधिक होता है, इंसुलेटर का बहुत अधिक होता है। रेजिस्टिविटी मतलब हुआ कि वो उसमें उस मटेरियल में कितना टेंडेंसी है रजिस्ट करने का, वो होगा रेजिस्टिविटी। ओके, मूव अप। Yes. After that, you please go through the example 12.2, 3, and 4, 5. Okay, move up. 6 is also there. Then there is 4 questions. You go all of these. Next come resistance of system of resistor. So just hold on. System of resistor. रजिस्टर मतलब क्या हुआ? रजिस्टर मतलब हुआ that wire itself, और सिस्टम ऑफ रजिस्टर मतलब कि बहुत सारा वायर है, बहुत सारा रजिस्टर है, तो उस बहुत सारे रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मैंने बताया था आपको कि दो तरह से हम लोग सिस्टम ऑफ रजिस्टर को बताते हैं। एक हमारा क्या होता है, सीरीज होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, पैरेलल पैरेलल। होता है। हाँ, दो तरह का होता है। तो मूव अप। यस, सुभाष कुमार, गुड मॉर्निंग सुभाष कुमार। Sir, Sant, okay. Sant and Sania, both are there? yes, sir. Okay. So, ठीक है। Okay, just wait. रजिस्टर इन सीरीज मीन्स आपको पता है एक रजिस्टर को दूसरे से जोड़ेंगे, जिस तरह हम रस्सी बांधते हैं, एक रस्सी लिया, दूसरा उसमें दूसरा बांध दिया, फिर तीसरा बांध दिया, ये सब हम लोग सीरीज करते हैं। ठीक है, रस्सी जो बांधते हैं हम लोग वो सीरीज करते हैं। पैरेलल क्या होता है, आप आगे बढ़िए, गो अप। एक्टिविटी है, ठीक है, आगे बढ़िए। ये सीरीज का एक्टिविटी दिया हुआ है, आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे दिया है, फॉर्मूला 12 जस्ट वेट, फॉर्मूला 12.14 जो है आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में कुछ नहीं करना है आपको आर एस निकालना है, मतलब कि रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालना है, तो आप सबको जोड़ देंगे, सिंपली जोड़ देंगे, आपको निकल जाएगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आगे बढ़िए। 12.7 एंड ऑल एग्जाम्पल दिया हुआ है उस पर, आगे बढ़िए, ये सारा एग्जाम्पल है। ये सब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हो जाएगा। ऊपर आप कहा है रजिस्टर इन पैरेलल, रजिस्टर्स इन पैरेलल। मैंने कहा था कि हमारे पास यदि मोर देन वन रजिस्टर है, सारे रजिस्टर का वन एंड एक पॉइंट एक्स पे जुड़ा हुआ है, फिगर को देखिए, और दूसरा एंड वाई पे जुड़ा हुआ है, ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रजिस्टर इन पैरेलल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आगे बढ़िए, कैसे निकालते हैं हम लोग। ये निकालते हैं हम लोग कैसे करके, आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ये फिर से बहुत आगे बढ़िए थोड़ा सा। कम टू द फॉर्मूला, थोड़ा सा इसको आप नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे कीजिए, और थोड़ा नीचे कीजिए, क्वेश्चन से पहले है, और थोड़ा नीचे कीजिए। और थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ, जस्ट वेट 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 वेट।
ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फिगर हो गया, दिखाया हुआ है। इस फिगर के अब उसको ऊपर कीजिए, अब आप उठेगा यहाँ पे फॉर्मूला। ये देखिए, जस्ट वेट। 12.18 जो है आपका, 12.18 जो है 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस पे कल हमने एक क्वेश्चन भी किया था, है ना, 1 ओम एंड 10⁻6 ओम को पैरेलल में ऐड किया। उसके बाद हमने क्या किया था, 1 ओम 10⁻3 ओम एंड 10⁻6 ओम हमने पैरेलल में किया, तो किसका वैल्यू अधिक होगा वो हमने डिस्कस किया था कल। ठीक है, आगे बढ़िए। Just wait at the question, just wait at the question। हाँ, ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था ना, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फ्लोइंग आर काउंटेड इन पैरेलल। पहला था 1 ओम 10⁻6 ओम, दूसरा था 1 ओम 10⁻3 ओम 10⁻6 ओम। अच्छा संत, आप मुझे बताइए ए और बी में से किसमें हमको अधिक रेजिस्टेंस मिलेगा? सर ए में। ए में हमको अधिक मिलेगा, लेकिन हम बी में 3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं, फिर भी अधिक मिल रहा है हमको ए में, है ना? जी। वेरी गुड। क्यों सर? अभी डिस्कस करते हैं उसको दोबारा, है ना। जस्ट वेट। Am I audible to you all? Yes sir. There was some problem in my laptop, so I have connected with my मोबाइल। क्यों अधिक होगा? कैन यू संत संत बोल सकता है क्या इस पे क्यों अधिक होगा? ए क्यों अधिक है, बी क्यों कम कम है? यस सर। हाँ बताइए संत। संत बताइए जल्दी इसको। यस सर, एक मिनट। सर क्योंकि ओम ओम पे ज्यादा नीचे में डिवाइड करना पड़ेगा, वो ए में। हाँ, ए में और बी अधिक में। डिवाइड करना पड़े, जी। ए में अधिक करना पड़ेगा डिवाइड, और बी में कम करना पड़ेगा। नहीं, बी में ज्यादा से डिवाइड करना पड़ेगा और ए में कम से डिवाइड करना पड़ेगा। यस यस। अच्छा ठीक है आदित्य, कैन यू क्या तुम बोल सकते हो उसको अच्छे से और अच्छे से? No sir. आदित्य नो बोल रहा है, क्यों? अच्छा रवि, यू जस्ट ओपन योर नोटबुक which which you have written yesterday। यस सर। याद करो, आपने क्या किया था वहां पर? आपने 1/rp निकाला था ए में, वहां पर लिखा था आपने, कितना लिखा हुआ देखो आप वहां पर क्या लिखा होगा? सर 10 लाख 1/10 लाख। हाँ 10 लाख 1/10 लाख है, 1/rp है, तो आरपी कितना हो गया? सर आरपी 10 लाख। 10 लाख अपॉन 10 लाख 1। हाँ, ये आरपी हो गया ए केस में, और बी केस में क्या हुआ था? सर बी केस में केस बी में आरपी कितना आया था? सर 10 लाख 1,001/10 लाख। 10 लाख 1,001/10 लाख। 1/rp था, आरपी कितना हुआ? आरपी हुआ सर 10 लाख 1,001।
अपॉन 10 लाख। आप पूरा क्यों नहीं बोल रहे हो, आधा बोलते हो? फिर से बोलो आप मुझे, एक केस में आरपी कितना है? एक केस में सर आरपी 10 लाख सर। पूरा 1 बताओ। अपॉन 10 आरपी 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू सर 10 लाख 1 अपॉन 10 लाख। यस 10 लाख 1 अपॉन 10 लाख। ये क्या है? ये आरपी 1 अपॉन आरपी है सर। आप मुझे आरपी बताओ, दोनों केस में कितना है? ए के केस में कितना आरपी है और बी के केस में कितना आरपी है, ये बताओ मुझे आप। सर ए के केस में आरपी है 10 लाख अपॉन 10 लाख 1। वेरी गुड, सब लोग देखिए अपने अपने कॉपी में। अब बी केस में, बी केस में सर 10 लाख अपॉन 10 लाख 1001। दोनों केस में आपका जो न्यूमरेटर है वो 10 लाख ही है, और आप पहले केस में डिनोमिनेटर में अधिक से डिवाइड कर रहे हो, कम से कर रहे हो, और सेकंड केस में अधिक से डिवाइड कर रहे हो। कौन सा वैल्यू अधिक होगा? ए वाला सर। हाँ, इसलिए जो है ए का जो रेजिस्टेंस है वो अधिक होगा। आया समझ में? रवि, यस सर। आदित्य, यस सर। वेरी गुड। संत संत तो पहले बता ही दिया था, ठीक है। सान्या क्लियर है ना ये? ओके गुड। और आप मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 संत आपने बनाया इसको? सर 3 समझ में नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्या? जी सर, आधा ही बना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 आधा बना, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं पूछता हूँ एक बार आदित्य से। सर 4 में खाली दिक्कत। 4 में केवल दिक्कत है, ठीक है। 3 हो गया आपसे? यस सर। ओके वेरी गुड। तो मैं एक बार 3 को एक बार क्लियर करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? हो व्हाट गया अबाउट सर। क्वेश्चन संत आपसे हुआ क्वेश्चन नंबर 2? नहीं सर, हाफ ही बन पाया। अच्छा ठीक है, ठीक, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel। देखिए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 1 ओम था, 10⁻³ ओम था और 10⁻6 ओम था। इस केस में क्या है? इसमें 100 ओम है, 50 ओम है एंड 500 ओम है। यहाँ भी 3 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है तो इसको आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना होगा इसका आरपी का वैल्यू। आप बोलेंगे 1/RP इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। यस रवि? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 में कर सकते हैं हम लोग 1/RP इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500 फॉर्मूला से। यस सर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, तो उसका एक बार लिखिए, आप कॉपी में लिखिए 1/RP इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, और उसका वैल्यू कितना आता है मुझे बताइए जल्दी से। तब तक मैं भी पेपर और पेन ले लेता हूँ और मैं फिर निकाल के देखता हूँ कि 16/500 सर। कितना आया है। 16/500 पॉइंट में भी निकाल दे। नहीं नहीं, रुकिए एक मिनट, अभी रुकिए, पॉइंट में जाना है। ये हो जाएगा आपने एलसीएम लिया तो 500 हो गया, और 500 यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। 16/500 हो गया। ये 1/RP हुआ ना, ये आपका 1/RP हुआ। यस सर। तो आरपी कितना हुआ होगा? 1500 अपॉन 16। 1500/16। ये आपने आरपी का वैल्यू नोट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि 220 वोल्ट सोर्स, हमारे पास वोल्ट पता है 220 वोल्ट है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक what is the resistance of an electric iron connected to the same source that take as much current as all three application, and what is the current through it?
क्वेश्चन समझिए, इस तीनों सोर्स को जोड़ दिया है 220 वोल्ट से, क्लियर। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, पहले जोड़ा है लैंप को, टोस्टर को एंड वाटर फिल्टर को। अब कह रहा है कितना, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, कितने रेजिस्टेंस का हम इलेक्ट्रिक आयरन लेंगे, कितने रेजिस्टेंस का हम इलेक्ट्रिक आयरन लेंगे जिसका रेजिस्टेंस उन तीनों के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। इज द क्वेश्चन क्लियर रवि? यस सर। तो बताइए कितना कर लेंगे? जितना का वो तीनों मिला करके है उतना रेजिस्टेंस का हम आयरन लेंगे, ठीक है। तो कितना का है वो तीनों मिला के, वो तीनों मिला के है 500/16, यस सर। तो उतना का ही लेंगे आयरन, ताकि दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, बराबर है, देखो ही पूछा है ना। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन connected to the same source that take as much current as all three appliances, उतना ही करंट लेगा जितना वो तीनों मिलाकर के लेगा। तो यदि वोल्टेज करंट क्या होता है, करंट होता है I इक्वल टू V अपॉन R। V हमारा दोनों केस में 220 ही है, मतलब सेम ही है, V है, तो दोनों केस में हमारा V जब सेम ही है तो R को हम जितना वो तीनों मिला करके है उतना ले लेंगे, तो सेम करंट दोनों कंज्यूम करेगा। तो कितना हो गया, 500/16 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ संत आपको? यस सर। वेरी गुड। आपको भी आया था 500/16? जी। हाँ, तो हो गया एक आंसर, तो वो हो गया। फिर पूछ रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू इट, तो करंट का वैल्यू क्या होता है, वी आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी है आपका 220, तो 220 अपॉन 500/16, तो 16 आपका ऊपर जाएगा, तो 220 इंटू 16 अपॉन 500। बताइए इसको सॉल्व करके कितना आता है? सर 220, 64। yes, 220 into 16 upon 500। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 220 इंटू 500/16 होगा ना, 220 इंटू 500/16। 220 हमारा वोल्ट है ना, हमारा रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमारा है 500/16, तो 220 इंटू 16 अपॉन 500 कर कीजिएगा ना, कितना आ रहा है? संत कितना आ रहा है? सर सॉल्व कर रहे 7 पॉइंट समथिंग आएगा। रवि आप बताइए, सॉरी आदित्य आप बताइए कितना आंसर आया आपको? 7.04। हाँ 7.04 आएगा, सबको उतना ही आएगा। कोई बात नहीं, 7 पॉइंट आ गया तो आप छोड़ दीजिए, आगे कर लीजिएगा बाद में। यस आदित्य? यस सर। संत आया, 7 पॉइंट आ रहा है ना कुछ? जी। 7.04 ही होगा। यस हाँ सर, उतना ही होगा। वेरी गुड। सान्या कर रही है ना? यस यस। हाँ, सबको सबको पेपर पेन लेके बैठना है, ठीक है। और जो लोग पेपर पेन लेके बैठना है और साथ के साथ कैलकुलेशन करते जाना है, ठीक है। मैंने भी ऑर्डर कर लिया है पेन टैब, पेन टैब आ गया है। कल से आप लोग को मैं भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखा पाऊंगा, ठीक है। बट वो जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सॉल्व कीजिए ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रहे। यदि मैं लिख के दिखा दूंगा आपको ऐसे सॉल्व करेंगे तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि वो आप खुद से करें ताकि उसको आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। सो नो आई एम मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द एडवांटेज। सर यस हेलो, यस, आपका वॉइस बहुत इको कर रहा है सर। अब आई थिंक नहीं करेगा, चलिए
मैं मूव कर रहा था इसलिए को कर रहा था। अभी ठीक है ना? Yeah, ठीक है, fine. ओके ओके। सो आराधना, आर यू एबल टू calculate that question? Little sir, because मेरा पीछे का पूरा complete नहीं हुआ है, but little. Okay, okay. I will help you to complete your previous portion. Okay, Yeah, sir. Thank you, sir. okay, welcome. So we are moving to third question. What are the advantage of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? आप मुझे कोई बताइए कि सीरीज और पैरेलल में आपने क्या डिफरेंस समझा। संत बताइए पहले। आप, मैं संत से पूछ रहा हूँ, व्हाट डिफरेंस यू हैव गॉट इन सीरीज एंड पैरेलल? यस संत, यस सर। बताइए क्या डिफरेंस लगा आपको सीरीज और पैरेलल में? सर सर सीरीज जो है ना, वो हाँ बताइए। वो मतलब एक से ज्यादा रेसिस्टेंस रहता है उसमें, पैरेलल में। और हाँ, और सीरीज में देखिए, यदि हमारा हम लोग सीरीज और वायर पैरेलल पे कब होता तीनों है? जब रेसिस्टेंस को मोर लगाया। देन वन रेजिस्टेंस। दोनों ही केस में हमारे पास मोर देन वन रेशियो होता है। दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, ये दोनों केस में होता है। ठीक है? यदि मोर देन वन होगा तभी तो उसको हम ग्रुपिंग करेंगे, तभी तो उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, तभी तो वो सीरीज या पैरेलल होगा। मोर देन वन तो दोनों में, ये तो सिमिलरिटी हो गया, ये डिफरेंस नहीं हुआ। मैंने कहा कि दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए। सानिया आप बताइए। थोड़ा जल्दी। देखिए ये बात मैंने कल भी कहा दोनों था, इफ यू डोंट नो द आंसर जस्ट से सॉरी सर आई डोंट नो। हाँ, क्या फिर से बोलिए एक बार सानिया। सानिया, आई एम आस्किंग यू। सर, एक ही वायर पे रेजिस्टेंस और पैरेलल हाँ ठीक है, ये डिफरेंस डिफरेंट सही वायर है। पे रेजिस्टेंस रहता है। हाँ ठीक है, ये डिफरेंस सही है। आदित्य आप बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर सीरीज में तीनों पॉइंट सीरीज में लगा हुआ रहता है, पैरेलल में तीनों पैरेलल पे। वेरी गुड। देखिए, दो तीन चीज हो, दो डिफरेंस हो गया कि सीरीज में वन के बाद वन लगा होता है, और पैरेलल में तीनों का स्टार्टिंग एक पे होता है और एंडिंग उसका दूसरे पे लगा होता है। ये तो हो गया। इसके अलावा कुछ बताइए, आप बताइए रवि। इसके अलावा कोई डिफरेंस बताइए रवि आप। सर नहीं पता है सर। कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ इसके अलावा। देखिए, ठीक है, आप लोग पेपर पेन लीजिए, पहले उसको लिखिए, फिर मैं उसको आपको आगे बताऊंगा। जस्ट राइट डाउन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी गेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RS. In series combination we get value of resistance RS. In series combination we get value of resistance RS, which is more than all the three, which is more than all the resistance, which is more than all the resistance, which is more than all the resistance. I
I am So repeating, that means in series, series combination is greater than the individual resistance. yeah, because we are adding all of them. We are writing RS is equal to R1 R2 R3, R1 plus R2 plus R3. So ये क्या हुआ, सबसे अधिक हो गया, राइट? Yes, sir. सेकंड पॉइंट लिखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन Is less than the individual's resistance. In pedal combination, we get RP, which is in pedal combination we get RP, which is less than all the resistance. Which is less than all the resistance. Aradhana, I want your comment here also. I'm not लिखिए आप hearing your अपना voice दूसरा point. properly, sir. Okay. My voice is not coming. Just wait. अभी ठीक है मेरा voice? Is my voice clear now? Yes, sir. हाँ, आराधना आप मुझे बताइए अभी जो मैंने लिखाया, योर कमेंट, गिव मी योर कमेंट हियर आल्सो. तो क्या बोला आपने, मैंने नहीं सुना. अच्छा, पहले मुझे बताइए कि आप लोगों ने दोनों पॉइंट नोट कर लिया, सब लोगों ने? यस सर. संत आपने नोट किया? यस सर। वेरी गुड. तो जिस तरह से आराधना आपने मुझे पहले बताया कि सीरीज में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो सबसे उसका वैल्यू सारे रेजिस्टेंस से बड़ा होगा, और मैंने लिखाया पेडलर में जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसका वैल्यू सारे रेजिस्टेंस से कम होगा. जैसे कि सपोज आपने 10 लिया, 100 लिया, 1000 लिया, तो उसका जो कॉम्बिनेशन मिलेगा पेडलर में वो 1000 से भी कम होगा, 100 से भी कम होगा और 10 से भी कम होगा. जो उसमें स्मॉलेस्ट है उससे भी कम होगा. लेकिन सीरीज में क्या होगा, जो उसमें बिगेस्ट है उससे भी ज्यादा होगा. यस, एम आई क्लियर हियर? यस सर. रवि, एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. आराधना, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? आराधना, आया आपको समझ में? You can type, if you are not able to speak, you can type in chat box also. I will see and I will satisfy. Aradhana, are you getting my voice? Okay, there may be internet issue. Okay. So I think this is clear to you all. Now come to this question. What is the advantage of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? यदि आपको पैरेलल में कनेक्ट करोगे
उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो आपको करंट अधिक मिलेगा। यदि सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट बहुत कम मिलेगा। ये चीज क्लियर हुआ आदित्य? यस सर। संत आपको क्लियर हुआ? यस सर। वेरी गुड। व्हाट अबाउट रवि? Yes, sir. Very good. So what about question number 4 and 5? Question number 4 is, how can three resistor of resistance 2, 3 and 6 be connected to give a total resistance 4 ohm? Who will answer this? ये बना आपको आदित्य क्वेश्चन? नो सर। नहीं बना, कोई बात नहीं। और संत आपसे बना ये क्वेश्चन? नो सर। और व्हाट अबाउट सानिया? No, sir. ओके, जस्ट लिसन दिस क्वेश्चन। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, और आप फिर मैं आप इसको ट्राई करना, नहीं बनेगा तब मैं इसको आपको लिख के बताऊंगा। मैंने पेन टाइम मंगा लिया है, मैं आपको लिख के यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, ठीक है? बट पहले आपको ट्राई करना है, क्योंकि आई वांट ऑल ऑफ यू टू डेवलप द आइडिया, डेवलप द कंसेप्ट, डेवलप द कैपेबिलिटी इन विद इन यू, कि ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है आपके कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है? आप यदि बीएचयू वाला एग्जाम दोगे, बीएचयू का एंट्रेंस दोगे, या और भी किसी अच्छे यूनिवर्सिटी का एग्जाम दोगे आप, तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से सुनिएगा। करा, हाउ कैन थ्री रेजिस्टेंस 2, 3 एंड 6 बी कनेक्टेड? तो देखिए, सबसे आसान होता है इसको सीरीज में कनेक्ट करना। यदि मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा संत? क्या बोले सर? यदि मैं इस तीनों को सीरीज में जोड़ दूं, इसका कितना रेजिस्टेंस आएगा? कितना आएगा रेजिस्टेंस संत इसका? 2 + 3 + 6 हो जाएगा ना ये? 1 आएगा सर। यदि मैं इसको सीरीज में जोड़ दूं तो 2 + 3 5, 5 + 6 11 होगा ना? जी सर 11 होगा रेसिस्टेंस। ठीक है, हाँ 11 होगा, क्योंकि सीरीज में जोड़ते हैं तो सब जुड़ जाता है, ठीक है? यदि मैं इसको पैरेलल में जोड़ूं तो 1/2 + 1/3 + 1/6, 1/2 + 1/3 + 1/6 करके बताइए कितना आ रहा है? 1/2 + 1/3 + 1 आएगा 1/6 सर आंसर। 1 आ 1। जाएगा, क्योंकि 6 हमारा एलसीएम आएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 रहेगा, तो 6/6 1 आ जाएगा। यस आदित्य? यस सर। रवि, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. वेरी गुड। मतलब आपको 11 मिलेगा कब? जब सीरीज में जोड़ेंगे तब। आपको 1 मिलेगा कब? जब आप इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तब। एक तो आंसर आ गया कि हाउ कैन थ्री रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस दिस बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस। ए में है 4, बी में है 1। तो आप बोलेंगे तीनों को सर आप पैरेलल में जोड़ दीजिए तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो बी का आंसर आपका हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट ए? 4 कैसे मिलेगा हमको? 4 हमको कैसे मिलेगा? ऐसा करें क्या, इस 3 और 6 को पैरेलल में कर देते हैं। 3 और 6 को पैरेलल में करेंगे, कितना मिलेगा? 1/3 + 1/6 कितना होगा? सब लोग पेपर और पेन लेके बैठिए और बताइए। 1/3 एंड 1/6। इस बार कोई नहीं बोलेगा, इस बार आराधना बोलेगी। या आराधना टाइप करके बताएगी कि 1/3 और 1/6 कितना हो रहा है। यस आराधना? आप लोग कैलकुलेट कीजिए, बट आंसर नहीं बोलना है। आप लोग आपको बना के रखना है। आराधना को आंसर करने दीजिए कितना आ रहा है। यदि मैं 3 को और 6 को पैरेलल में जोड़ दूं तो 1/3 + 1/6 कितना आएगा?
Aradhna, are you getting my voice? ओके, आई थिंक उसका इंटरनेट थोड़ा वीक है। तो आदित्य आप बताइए कितना आया? 1/2 1/2 तो आया, 1/RP ना, आरपी कितना होगा? 2 ठीक है संत, 2 आया आपको। जी सर। अब 2 में भी इस 2 को सीरीज में जोड़ देंगे, पहले वाला 2 को जो छोड़ा था हमने उसको सीरीज में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 + 2 4। तो हो गया 4 आ गया आपको। तो बताइए क्या किया हमने? हमने किया, हमने 3 और 6 को पैरेलल में रखा और उसके साथ 2 को सीरीज में कर दिया, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस 4 आ गया। वही पूछा है आपसे, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3 and 6 बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस 4? तो बोलेगा आंसर 3 and 6 बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 2 इज सीरीज टू देम, तो 4 आ जाएगा, और तीनों को पैरेलल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ संत ये? यस सर। वेरी गुड। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द हाईएस्ट द लोवेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी secured by combination of 4 coil of resistance 4, 8, 12 and 24? तो पता है आपको, जब सीरीज में जोड़ते हैं तो हाईएस्ट मिलता है, और जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो लोवेस्ट मिलता है। तो सीरीज में करेंगे कितना होगा? 4 + 8 + 12 + 24, 4 + 8 12, 12 + 12 24, 24 + 24 48, 48 48 हो गया, 48 हाईएस्ट हो गया। एंड व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू? मतलब पैरेलल में करेंगे 1/RS = 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। जल्दी से निकाल के बताइए कितना हो रहा है। 2 रेजिस्टेंस 2 होता है। 2 होता है सर, 2। अच्छा निकाल, वेरी गुड, आप लोगों ने पांचों बना लिया। ठीक है, तो इसके बाद है, कल हम लोग शुरू करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। ठीक है, प्लीज आप लोग टाइम पे आइए, नहीं तो आपका क्लास मिस हो जाता है। 7 बजे का समय है, तो 7:05 तक आप आ जाइए, प्रयास कीजिए। ठीक है, और एक बार आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए सब लोग। आप शेयरिंग बंद कर दीजिए, और एक बार हाँ शेयरिंग बंद कर दीजिए। ठीक है, यस आदित्य, ओके, हम लोग ऑन कीजिए साथ में। रवि, संत, वेरी सानिया, ठीक है। आराधना का तो इंटरनेट अभी वीक है सर, वो ऑन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अभी आप लोग 1 मिनट रुकिए, और मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों के लिए मैंने नया पेंटर ऑर्डर किया है, ताकि मैं अच्छे से उसमें लिख सकूँ। आप लोगों के सामने मैं उसको ओपन करूँगा, आप लोग देखिएगा उसको अच्छे से कैसा है पेंटर, बताइएगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ अभी।